बेसल गैंग्लिया में फिर थोड़ा सा कई लोग कल क्लास अटेंड नहीं किए थे तो बेसल गैंग्लिया में आज फिर थोड़ा सा पढ़ाया था, उसको फिर हल्का सा रिवाइज करा देता हूं मैं। सो रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक इज बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया आर scattered masses. Basal ganglia are scattered masses of gray matter. Basal ganglia are scattered masses of gray matter in the forebrain and upper part of the brain stem. Basal ganglia form the part of extrapyramidal system Basal ganglia form the part of extrapyramidal system. Basal ganglia is in a side loop which influence the pyramidal system activity. कल एक छोटा सा व्हाट्सएप पे मैंने एक डायग्राम भेजा था, जिसके पास नहीं अपने फ्रेंड से ले लीजिए उसको, तो उसमें देख लीजिएगा बेसल गैंग्लिया किस तरीके से लूप बनाता है। Now write down components of basal ganglia. बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या क्या चीज होती हैं? Components of basal ganglia. अब components basal ganglia में क्या क्या होता है? Corpus striatum, corpus striatum, C-O-R-P-U-S, striatum, S-T-R-I-A-T-U-M, corpus striatum. Second is substantia nigra, substantia, S-U-B-S-T-A-N-T-I-A, substantia nigra, N-I-G-R-A, substantia nigra. And third is subthalamic nucleus, subthalamic, S-U-B, subthalamic, T-H-A-L-A, thalamic, M-A-C, thalamic, sorry, M-I-C, thalamic nucleus, subthalamic nucleus. अब ये कॉर्पस स्ट्राइटम क्या चीज होती है? It is a mass of gray matter. It is a mass of gray matter present at the base of cerebral hemisphere. It is a mass of gray matter It is the mass of gray matter present at the base of cerebral hemisphere and the internal capsule divide the corpus striatum and the internal capsule divide the corpus striatum
into two parts. And the internal capsule divide the corpus striatum into two parts. अभी दो पार्ट्स कौन से हो गए? फर्स्ट पार्ट इज chordate nucleus. First part is chordate nucleus. First part is chordate nucleus. CAUDATE, chordate nucleus. और दूसरा पार्ट होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस. लेंटिकुलर LENTICULAR, लेंटिकुलर न्यूक्लियस. लेंटिकुलर न्यूक्लियस के भी दो पार्ट्स होते हैं. अब ये दो पार्ट्स कौन से हैं? आउटर वन इज कॉल्ड पुटामेन. Outer one is called putamen, P-U-T-A-M-E-N, P-U-T-A-M-E-N, putamen, and the inner one is called globus pallidus, globus pallidus, G-L-O-B-U-S, globus pallidus, P-A-L-L-I-D-U-S, globus pallidus. Next is function of basal ganglia. Basal ganglia का function क्या है? The first function of basal ganglia is control of voluntary motor activity. Control of voluntary motor activity. Control of voluntary motor activity. The movements during voluntary motor activity. The movements during voluntary motor activity are initiated by cerebral cortex. These movements are controlled by basal ganglia. These movements are controlled by basal ganglia, which are in close association with cerebral cortex. अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाए तो डैमेज को क्या बोलते हैं? लीजन मीन्स डैमेज, LESION. So during lesion of basal ganglia, LESION, during lesion of basal ganglia, controlling mechanism is lost, and so movements become inaccurate, So this is the first function of basal ganglia. Second function of basal ganglia.
Second function is control of reflex muscular activity. Control of reflex muscular activity. Some of the reflex muscular activities like visual and labyrinthine, visual and visual, VISUAL, visual and labyrinthine, 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 labyrinthine. So some of the reflex muscular activities like visual and labyrinthine reflexes are important in the maintenance of posture, the coordination and integration of impulses, for these activities depends upon the basal ganglia. The third function of basal ganglia is control of muscular tone. Control of muscular tone, T-O-N-E, tone. हेलो 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 जी सर। यस सर। हाँ, मैं दीक्षा से बात करना चाह रहा हूँ मैं। यस सर। बेटे आप अटेंडेंस नहीं भेज रही हैं बेटे, कुछ नाराजगी हमसे क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। कल सर भेज नहीं पाई थी, कुछ बिजी थी इस वजह से, तो कहीं गई हुई थी मैं। नहीं, हमें सोचा नाराज हो आप हमसे। नहीं सर, नाराज नहीं है सर, भेज देंगे कल की और आज की दोनों की। हाँ ठीक है, थैंक यू। So control of muscular tone, gamma motor neurons of the spinal cord of the spinal cord are responsible for maintaining the tone of the muscle. Gamma motor neurons of the spinal cord are responsible for maintaining the tone, T-O-N-E, tone of the muscles and the muscle tone
also depends upon, and the muscle tone also depends upon the function of the muscle spindle, and the muscle tone also depends upon the function of the muscle spindle. The gamma motor neuron muscle, the gamma motor neurons muscles the gamma motor neurons, muscle spindle, and muscle tone are all controlled by basal ganglia. Are all controlled by basal ganglia. Fourth function is control of automatic associated movements. Control of automatic associated movements. जब आप चलते हैं तो पैरों से हम चलते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हाथ भी चलते हैं, तो हाथ चलने को क्या कहते हैं, स्विंगिंग ऑफ आर्म्स. Swinging of arms during walking. Swinging of arms during walking. Facial expression while doing any work. Swinging of arms during walking. दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, या कोई काम आपको पसंद नहीं आता तो चेहरे अजीब सा चेहरा बना लेते हैं. फेशियल एक्सप्रेशन, खुश होते हैं तो एक अलग से एक्सप्रेशन देते हैं, गुस्से में होते एक अलग से एक्सप्रेशन देते हैं. घर में कभी कभी डांट पड़ती है, मम्मी डांटती हैं तो मुंह से जवाब जैसे आप लोग नहीं दे पाते हैं तो कुछ नहीं होगा, फेशियल एक्सप्रेशन एक अलग से बना लोगे तो एक आइडिया लग जाता है कि आप गुस्से में हैं या नाराज हैं. सो स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन व्हाइल डूइंग एनी वर्क and other movements associated with motor activities are called automatic associated movements. Are called automatic associated movements. Basal ganglia are responsible for these movements. Basal ganglia are responsible for these movements. Basal ganglia are responsible for these movements. The fifth function of basal ganglia is role in arousal mechanism. Arousal की spelling है AROUSAL. Role in
role, R-O-L-E, role in arousal mechanism, A-R-O-U-S-A-L. Arousal मैंने जागना. Globus pallidus and red nucleus. Globus pallidus. Globus, G-L-O-B-U-S. Globus pallidus, P-A-L-L-I-D-U-S. Globus pallidus and red nucleus. Globus pallidus and red nucleus are involved. Globus pallidus and red nucleus are involved in arousal mechanism. Because of their connection with reticular formation. Because of their connection with reticular formation. Lesion in globus pallidus. लीजन मैंने कई बार अक्सर बताता हूं मैं, डैमेज, L-E-S-I-O-N. लीजन इन ग्लोबस पैलाइडस causes drowsiness, D-R-O-W-S-I-N-E-S-S, drowsiness, leading to sleep. So lesion in globus pallidus causes drowsiness, leading to sleep. Basal ganglia is also an integral part. Integral means important. Integral, I-N-T-E-G-R-A-L. Basal ganglia is also an integral part of pyramidal system. Basal ganglia is also an integral part of pyramidal system. The basal ganglia exert its action. The basal ganglia exert its action. E-X-E-R-T-S. Exerts its action on motor cortex. By the motor loop. The next function of basal ganglia is role of neurotransmitters in the function of basal ganglia.
अब इसमें बेसल गैंग्लिया में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं? द न्यूरोट्रांसमीटर्स neuro, N-E-U-R-O, neurotransmitters, T-R-A-N-S-M-I-T-T-E-R-S. The neurotransmitters released in the basal ganglia are कई सारे हैं, 5 हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट इज डोपामिन। Dopamine is released by dopaminergic fibers. Dopamine is released by dopaminergic fibers from substantia nigra to corpus striatum. तो डोपामिन कहाँ रिलीज होती है? इट इज रिलीज्ड बाय डोपामिनर्जिक फाइबर्स फ्रॉम सबस्टेंशिया nigra टू कॉर्पस स्ट्राइटम। द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, अगर डोपामिन कम हो जाए तो क्या होगा? सो द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन लीड्स टू पार्किंसोनिज्म। द डेफिशिएंसी मैंने कमी, डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, DOPAMINE। द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन लीड्स टू पार्किंसोनिज्म। पार्क ये डिजीज है, पार्किंसोनिज्म, PARKINSONISM, Parkinsonism. Second neurotransmitter is GABA, G, capital G, capital A, capital B, capital A, GABA, GABA। पूरा नाम इसका क्या है? गामा, GAMMA, गामा। A stand for amino, AMINO, amino. B stand for butyric, and last A stand for acid, GABA। फुल फॉर्म क्या हो गया? गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। द थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन। एसिटाइल, ACETYLCHOLIN, एसिटाइलकोलिन। And fourth is substance dash P, P for parrot, substance dash capital P, and encephalin, ENCEPHALINS, encephalins, encephalins. And fifth neurotransmitter is noradrenaline, noradrenaline, ADRENALIN.
So this is general about the basal ganglia. अब बेसल गैंग्लिया अगर डैमेज हो जाए या इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो क्या प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी होती है, उसमें क्या क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या बीमारी, उस बीमारी को क्या बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया. डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है बेसल गैंग्लिया का पार्किंसनिज्म. अब स्पेलिंग बताइए मैंने आपको, PARKINSONISM, पार्किंसोनिज्म. पार्किंसोनिज्म. It occurs due to damage of basal ganglia. It occurs due to damage of basal ganglia. It occurs due to damage of basal ganglia. अब बेसल गैंग्लिया में क्या क्या चीज डैमेज हो सकती हैं? सबस्टेंशिया नाइग्रा, सबस्टेंशिया नाइग्रा, SUBSTANTIA, सबस्टेंशिया नाइग्रा, NIGRA, नाइग्रा, एंड नाइग्रो, NIGRO, नाइग्रो, नाइग्रो, स्ट्रायल, STRIAL, नाइग्रो स्ट्रायल पाथवे, which has dopaminergic fibers. इसमें कैसे फाइबर्स होते हैं? डोपामिनर्जिक. कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होगा? डोपामिन. सो विच हैज डोपामिनर्जिक, DOPAMINERGIC, डोपामिनर्जिक नर्व फाइबर्स. अब पार्किंसनिज्म में सिम्टम्स क्या होते हैं? अब एक टर्म में आपको और बताऊंगा, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, हालांकि मेडिसिन का ये क्वेश्चन है. तो कोई दो टर्म होती हैं, एक होता है सिम्टम और एक होता है साइन. सिम्टम और साइन में क्या फर्क है? आइडिया है आप लोगों को? सिम्टम किसे कहते हैं, साइन किसे कहते हैं? सर सिम्टम होता है लक्षण और साइन होता है केंद्र जहां से अराइज हुआ है वो. ये सिम्टम क्या बताया? सर सिम्टम्स तो हो गए लक्षण. हाँ, और सर साइंस हो गए. हाँ, और सर साइंस हो गया वो केंद्र जहाँ से वो अराइज हुआ है, जहाँ जहाँ डैमेज होने से जहाँ से वो डैमेज उसका आगे बढ़ा है, वो साइंस हो गए. चलिए ठीक है, मतलब आपने अपने हिसाब से सही बताया, लेकिन एग्जैक्ट इसका मीनिंग तो कोई याद, सिर्फ एक एक लाइन का इसका आंसर है. सिम्टम और साइन का या रट लेना उसको, ये हमेशा काम आएगा. व्हाट द पेशेंट से, बोलो. व्हाट द पेशेंट से, सब बोलो. What the patient say. That is called symptom. That is called symptoms. That is called. दो और बोलो ये. What the patient say, that is called symptom. हाँ, फिर बोलिए, सब बोलो. What the patient say is called the symptom. हाँ. And what, अब साइन क्या होता है? What the doctor observe, that is called sign. अब ये 5 शब्द. What the doctor observe. Sorry. फिर बोलो. What the doctor observe, that is sign. हाँ. फिर करो बेटा. बोलिए बेटे, फिर इसको रट लियो. व्हाट इज सिम्टम और साइन की डेफिनेशन फिर मेरे को बताओ. व्हाट इज सिम्टम? What the patient say, that is called symptoms. Good. What the doctor observe Sign. is called sign. अब बोलोगे तो नहीं? No sir. हाँ, जैसे पेशेंट आया, उसने कहा मेरे को
1 महीने से बुखार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सिम्टम हो गया। ये पेशेंट की कंप्लेंट हो गई ना, इसको क्या बोलेंगे, सिम्टम। अब आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसका टेम्परेचर मेजर किया, उसका ब्लड चेक सर करा, एक बार बता दीजिए। उसका एब्डोमेन चेक किया, पेट में क्या देखा, उसके स्प्लीन देखा, स्प्लीन तो नहीं इनलार्ज हो गया, लिवर तो नहीं इनलार्ज हो गया, इस स्टेथोस्कोप से चेस्ट ऑस्कल्टेट किया कि कहीं कोई कंजेशन तो नहीं है उसकी वजह से बुखार। तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, है ना, क्या क्या उसमें फाइंडिंग साइन, इसको क्या बोलते हैं, साइंस। पेशेंट क्या क्या दिक्कत आपको बताता है ना। जैसे ये मेरा हाथ ऊपर नहीं होता, वो तो कहेगा मेरा हाथ ऊपर नहीं होता, ऐसे नहीं जाता। तो ये क्या हो गया, ये सिम्टम हो गया, ये क्या हो गया। और जब आप इसको अपना हिसाब से इसको चेक करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, साइंस हो जाएंगे, अब भूलना नहीं। सो सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म, बल्कि बेटर टू राइट डाउन सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पार्किंसनिज्म, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पार्किंसनिज्म। कई सारे हैं, ये बड़ी कॉमन डिजीज है। बेटे 1 सेकेंड का मेरे को टाइम दे। तो सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पार्किंसनिज्म। अब इसमें क्या होता है पार्किंसनिज्म में, जैसे पेशेंट को दिखाता हूं मैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट बैठा है, उसके हाथ में पेन दे दिया आपने, तो बैंक में गया उसको साइन करना है, तो उसके हाथ एकदम ऐसे से इस तरीके से कांपते हैं, मतलब ट्रेमर्स होते हैं बुरी तरीके से। तो ऐसे केस आपने देखे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्किंसनिज्म। The first symptom sign is rigidity. Rigidity, R-I-G-I-D-I-T-Y, rigidity. इसमें लिख लीजिए। अब rigidity क्यों होती है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ inhibitory influence
due to the removal of due to removal of due to the removal of inhibitory influence due to removal of inhibitory influence on gamma motor neurons, the muscle tone is increased. The muscle tone is increased, leading to rigidity. Rigidity स्पेलिंग अभी बताएंगे, फिर सुन लीजिए, RIGIDITY, rigidity. Second, poverty of movements. Movements कम हो जाती हैं. Poverty, POVER, poverty, POVERTY. Poverty of movements. ये क्यों हो जाती है, इसमें लिख लीजिए, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ automatic associated movement. Due to the absence of automatic associated movement. और थर्ड इसमें अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसमें ट्रेमर्स होते हैं. ट्रेमर्स, TREMORS, TREMORS, ट्रेमर्स. ट्रेमर्स अकर ड्यूरिंग रेस्ट. जब पेशेंट रेस्ट करता है उस समय ट्रेमर्स होते हैं, और जब वो चलने लगता है ट्रेमर्स गायब हो जाते हैं. So tremors occur during rest and disappear during working या walking. चलने लगा या कोई काम करने लगा उस समय ट्रेमर्स क्या होगा, गायब हो जाते हैं. So tremors occur during rest and disappear during working. तो सिम्टम साइंस में फर्स्ट सिम्टम साइन हो गया रिजिडिटी, सेकंड हो गया पोवर्टी ऑफ मूवमेंट, और थर्ड हो गया ट्रेमर्स. एंड फोर्थ इज akanesia. akanesia, AKIN, kinesia, AKINESIA, akinesia. और hypokinesia, hypo मैंने कम, A मीन्स एब्सेंट, akinesia और hypokinesia. अब akinesia क्या होता है, द पेशेंट इज अनेबल टू इनिशिएट द वॉलंटरी एक्टिविटी. द पेशेंट इज akinesia, द पेशेंट इज अनेबल टू इनिशिएट मैंने स्टार्ट, initiate, INITIATE, initiate the voluntary activity. और hypokinesia क्या होता है, voluntary movements are decreased. Next symptom sign is gait. ये घर का दरवाजा नहीं है. अब मेरे को एक चीज बताओ, नावेद बताएगा. नावेद, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गेट? गेट की स्पेलिंग बताओ बेटे. और तो नहीं आता कभी परेशान ना हो, तो सही हो या गलत हो थोड़ा आइटम दिमाग लगाओ, मैं तो बताऊंगा ही आपको. इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में. हेलो सर, नावेद है नहीं क्लास में. नावेद कहाँ, पहले बताओ. नावेद दिखाई नहीं है क्लास में. है सर नहीं है क्लास में.
नावेद, चलो अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहे हैं ये, कोई सर वो बात क्लास में ही नहीं है, लेफ्ट कर दी उसने क्लास। ठीक है। तो चलिए अब आप जिसको आता हो वो बताएं मेरे को। वो सर GAIT सर GAIT GAIT GATE सर GAIT। मैं इसीलिए, अच्छा और बताओ, और दिमाग लगाओ। एक ने बताया GAIT और दूसरे ने क्या बताया, GATE ना, क्यों यही बताया ना बेटे? सर GATE हाँ, सही स्पेलिंग इसकी है, वो क्या है, GAIT बेटे। इसीलिए बेटे मैंने आप लोगों से पूछा, जिससे कभी जिंदगी में गलती ना करो। गेट किसे कहते हैं, किस तरीके से आप चलते हैं, आपका चलने का तरीका कैसा है, इसको क्या बोलते हैं, गेट। GAIT बोलो, सब बोलो, गेट की स्पेलिंग क्या है? GAIT। हाँ, इसको 5 वर्ड लिख लो। GAIT, GATE नहीं है बेटे, याद रखना, GAIT गेट। अब पेशेंट चलता कैसे है, राइट डाउन। पेशेंट वॉक्स क्विकली, फटाफट चलता है, उसकी स्पीड थोड़ी तेज होती है। पेशेंट वॉक्स क्विकली इन शॉर्ट स्टेप्स, स्टेप कैसे होंगे देखो, छोटे छोटे, इस तरीके से। पेशेंट वॉक्स क्विकली इन शॉर्ट स्टेप्स, इन शॉर्ट स्टेप्स बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ ऐसे झुक के, बाय बेंडिंग फॉरवर्ड। Patient walks quickly in short steps by bending forward. By bending forward. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है पार्किंसोनिज्म का? पार्किंसोनिज्म में ट्रीटमेंट, राइट डाउन, ट्रीटमेंट कौन सी मेडिसिन इसमें लेते हैं? चलिए आप लोगों का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो, मेडिसिन इसमें लेते हैं लीवोडोपा, लीवो LEVO LELEVO, लीवो डोपा DOPA, लीवोडोपा। तो बेसल गैंग्लिया जब डैमेज होता है तो एक तो प्रॉब्लम होती है हमारे, कौन सी, पार्किंसोनिज्म। मैंने देखो पार्किंसोनिज्म काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया, सिम्टम साइंस बताया, इसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। और सेकंड डिजीज कौन सी इससे हो जाती है, डिसऑर्डर और बेसल गैंग्लिया से? राइट डाउन, विल्सन डिजीज, विल्सन WILSONS, विल्सन डिजीज, WILSONS, Wilson's disease. It developed due to damage of the lenticular nucleus. It developed due to the damage of lenticular nucleus, lenticular, LENTICULAR, lenticular nucleus, mainly putamen। कौन सा न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है, पुटामेन, PUTAMEN। ये मैंने थोड़ी सी अभी आपका नोट में जब बेसल गैंग्लिया की पढ़ाई थी उसमें एक पार्ट मैंने बताया था, पुटामेन। सो विल्सन डिजीज कैसे डेवलप हुई, डेवलप ड्यू टू डैमेज ऑफ लेंटिकुलर न्यूक्लियस, मेनली पुटामेन, PUTAMEN।
अब इसमें क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिज्म के तो होते ही हैं, सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिज्म प्लस symptoms of Parkinsonism plus there is degeneration of the liver. There is degeneration of the liver. और सही मायने में किसका डिसऑर्डर हो जाता है, इस मेटाबॉलिज्म का, कॉपर का। राइट डाउन, डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म, कॉपर COPPER, कॉपर मेटाबॉलिज्म। ये कौन सी डिजीज हो गई, विल्सन्स डिजीज। तीसरा जो प्रॉब्लम अराइज होता है इससे, बेसल गैंग्लिया जब डेवलप हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, कोरिया। पहला आपने पार्किंसोनिज्म लिखा, दूसरा विल्सन लिखा, थर्ड इज कोरिया, CHOREA, कोरिया। इसमें क्या होता है, कोरिया में CHOREA, कोरिया, एबनॉर्मल involuntary rapid jerky movement, abnormal involuntary rapid jerking, JERKY, jerky movements, abnormal involuntary rapid jerky movements, कोरिया। Fourth is athetosis, athetosis, ATHE, athetosis, ATHETOSIS, athetosis। अब एथिटोसिस क्या होता है, abnormal involuntary movements, abnormal involuntary movements where slow rhythmic and twisting movements, एथिटोसिस। फिर सुन लीजिए, abnormal involuntary movements where slow rhythmic RHYTHMIC, where slow rhythmic and twisting movement, twisting TWISTING, twisting movements. Fifth problem is Huntington's chorea, Huntington's, HUNTINGTONS, Huntington's chorea, CHOREA, Huntington's chorea। HUNTINGTONS, Huntington's chorea। And the last disorder is hemibellismus, hemi मैंने half, HEMI, hemibellismus, BALLISMUS, hemibellismus। फिर सुन लीजिए स्पेलिंग, हेमी HEMI, hemibellismus, BALLISMUS। अभी हेमीबेलिस्मस क्या होता है, violent involuntary abnormal movements, violent involuntary abnormal movements on one side of the body
involving mostly arms. Hemibellismus, violent, involuntary, abnormal movements on one side of the body involving mostly arms. So this is all about the basal ganglia. So after basal ganglia, सेरिबेलम, थोड़ा सा बता, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सेरिबेलम रहेगा और थोड़ा सा अभी 2-3 मिनट है, स्टार्ट कर देता हूं मैं सेरिबेलम. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेरिबेलम. सेरिब्रम अलग होता है, सेरिबेलम अलग चीज होती है. सेरिबेलम CEREBELLUM, सेरिबेलम. The cerebellum lies है. हेलो, हाँ बेटे रवि बोल. नहीं सर, कुछ सर रिपीट करने के लिए बोल रहा था सर, सुनाई नहीं दे रहा था, कट गया था. आप सुनाई दे रहा है? हाँ सर. Cerebellum. The cerebellum lies dorsal to the brainstem. The cerebellum lies dorsal to the brainstem. तीन चीज रट लो, 3 पार्ट. ब्रेन स्टेम के मैं फिर याद करा रहा हूं मैं और आपसे पूछता हूं मैं, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स मेरे को बताओ बेटा, कौन कौन से हैं. मैंने आपको बता चुका हूं. फर्स्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons, midbrain, midbrain. ठीक है. हाँ, कैसे याद करोगे? MTM याद कर लो. MTM, M स्टैंड फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा, P स्टैंड फॉर पॉन्स, इसके ऊपर क्या होगा? मिड ब्रेन. ठीक है, याद हो गया सबको? तो ब्रेन स्टेम के में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट, मेडुला, पॉन्स और तीसरा मिड ब्रेन. और इसके अंदर खाली स्पेस रहता है, उसमें नर्व फाइबर्स होते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, पूरा नेटवर्क एकदम जाल सा बना लेते हैं. कुछ असेंडिंग होते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, डिसेंडिंग होते हैं. इसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन. बोलना. So cerebellum. The cerebellum lies dorsal to the brainstem. Lies कहाँ प्रेजेंट होता है cerebellum? ब्रेन के डॉर्सल साइड में. So cerebellum is present and lies dorsal to the brainstem and is connected to the brainstem by 3 पेडंकल्स. पेडंकल्स जानते हो ना, फूल के फ्लावर होता है, उसके नीचे जो डंठल होता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिकल्स. तो उसी तरीके से ब्रेन स्टेम से ये 3 पेडंकल से जुड़ा रहता है. सो एंड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन स्टेम बाय 3 पेडंकल्स. PEDUNCLES, पेडंकल्स. फर्स्ट बाय inferior, दूसरा मिडल और तीसरा सुपीरियर. सो फर्स्ट इज बाय inferior cerebellar peduncle, to the medulla. inferior cerebellar peduncle किससे जुड़ा होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा से. मिडल cerebellar peduncle किससे जुड़ा होगा? पॉन्स से. सुपीरियर cerebellar peduncle किससे जुड़ा होगा? मिड ब्रेन से.
तो आज मैं इसको ही खत्म करता हूँ और कल थर्सडे है बेटे, कल क्लास वही 11 बजे रखते हैं। कल फिर 11 बजे क्लास होगी, ध्यान रखिएगा बेटे, मेंशन कर दीजिएगा उसको। ओके बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो, बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। बाय। Thank you so much. थैंक यू सर। Take care. थैंक यू सर। वेलकम बेटे।